हाय एमएचीज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फाइनल फॉर्म डायरीज। आज का एपिसोड थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज मैं अपने वर्कआउट के साथ साथ अपने पेशेंट का भी वर्कआउट शेयर करने वाला हूँ। आई हैव बीन ट्रीटिंग हिम फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर और अ ईयर एंड 2 months, and during this time he has shown a lot of progress. In the starting he was not able to even stand on his own or walk on his own, but now he started walking, standing, and he started picking up things on his own. He started making tea for himself. He has come a long way and he has shown a lot of progress. Well, starting में थोड़ा difficult था, लेकिन धीरे धीरे as he started doing his exercises and yoga and I started initiating Reiki to him, since then he started getting a lot of. तो चलो बिना देरी के आज का एपिसोड शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको इसको ज़रूर लाइक करना है। एम करते हैं 100 लाइक्स पे। एंड ऑल्सो मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो टू सच पीपल हु विल बी बेनिफिशियल विद दिस वन। And don't forget to subscribe and comment your favorite part. So his session always start with short meditation and Reiki energy healing, after which 1 or 2 breathing exercises. Today we only did 1 breathing exercise, and then we started doing shoulder mobility exercise. We started with shoulder circles, and his shoulders are really stiff, especially the right one. So we need to make sure that his shoulders get the mobility, and so I always stretch it out before we begin. So हमने start किया easy pose with forward bend, which is also known as Adho Mukh Sukha Asan. We did this for around 30 to 35 seconds. उसके बाद हमने किया सिटेड फॉरवर्ड फोल्ड। ये भी हमने आराम से 30 से 35 सेकंड के लिए किया। फिर उसके बाद हमने किया जानु शीर्षा आसन, ऑल्सो नोन एज सिंगल लेग फॉरवर्ड फोल्ड। इसको हमने 30 से 35 सेकंड के लिए किया, वो भी एक सिंगल लेग पे, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू द अदर लेग। After that we did Ardha Matsyendra Asan. We did this asan 35 to 40 seconds on each side. Once we were done with Matsyendraa Asan, I made him do the Manduk Asan. It is really good for people who are suffering from diabetes. As my patient is suffering from diabetes, this asan helps him a lot. Then we did one exercise for knee mobility, which was standing on the knees. After which we did tabletop pose and we did arm balance, 1 arm tabletop pose as well. It helps him in balancing his core and also helps him in control and coordination. After which I helped him to transition into the tiger pose. It's really hard for him to hold the leg for this high, so I helped him. And then we did seated back rotation for 10 to 15 seconds before we move on to the next yoga pose.
The next yoga pose that we practiced was standing forward fold. After the standing forward fold, I helped him in standing back bend. So the thing is, his back is really stiff and we need to open it. But जब मैं इन्हें फर्स्ट टाइम मिला था तब इन्हें पकड़ के चलाया जाता था एंड ही वॉज नॉट इवन एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड. तो उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए हैं और ये जो सेशंस है ये रोज़ नहीं होते हैं. इट्स लाइक हफ्ते में 2 या 3 दिन होता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा लंबा गैप भी आ जाता है. तो अगर हम वो सब देखें तो ही हैज़ कम अ लॉन्ग वे. जो हमारा नेक्स्ट योगा पोज था वो था वॉरियर पोज 1. वैसे तो ये राइट अलाइनमेंट नहीं है लेकिन धीरे धीरे करके he'll get into the habit of doing this pose as well. नेक्स्ट जो था वो था स्टैंडिंग calf raises. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज था वो था लेग रेजेस. स्टार्ट कर हमने सिंगल लेग रेजेस से. आफ्टर दैट आई मेड हिम डू लेग्स अप द वॉल. इट्स रियली गुड टू एंगेज हिज कोर एंड देन वी मूव ऑन टू लेग रेजेस. जो लास्ट योगा पोज था हमारा वो था ब्रिज पोज. तो फाइनली हमारा ये योगा सेशन यहीं पे ख़त्म हुआ एंड उसके बाद हमने स्टार्ट किया एक जेंटल वॉक रूटीन से. सो दिस वाज हिज थेरेपी सेशन फॉर टुडे. आफ्टर दिस आई वेंट टू जिम टू डू माई वर्कआउट. तो फाइनली हम जिम में आ गए हैं. आज हम करने वाले हैं बैक एंड अ मॉरल लेसन फ्रॉम सलमान खान. बैक करो बैक, क्योंकि बैक पे लोग बहुत ज़्यादा चक्कू घूमते हैं, इसलिए बैक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन बैक से पहले मैंने बहुत टाइम से कार्डियो नहीं किया है, तो अपने वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैं 8-10 मिनट का एक छोटा सा रन करूँगा, फिर हम करेंगे अपना वर्कआउट स्टार्ट. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like. तो मेरा रन जो था बहुत सही था, 11.5 मिनट का एंड आई रैन फॉर लाइक अराउंड 1.59 किलोमीटर्स. अब हम करेंगे डेडलिफ्ट्स बिकॉज यूजुअली मैं बैक वर्कआउट में सबसे पहले पुलअप्स करता हूँ, लेकिन आज मुझे पुलअप्स का जो रेपिटेशंस है वो ज़्यादा रखना है. तो अगर मेरा कोर पहले से ही एंगेज्ड है जो डेडलिफ्ट करके हो जाएगा तो आई विल बी एबल टू डू मोर पुलअप्स. तो मैं पहले करने वाला हूँ डेडलिफ्ट. स्टार्ट करेंगे 80 kg से, देन ऑल द वे अप टू द मैक्सिमम दैट आई कैन लिफ्ट. तो जो डेडलिफ्ट का वार्म अप सेट था वो मैंने आज 80 kg से किया है. वो मैंने बेसिकली अपना वेट इंक्रीज़ कर दिया. पहले मैं 60 kg से करता था, अब मैं 80 से कर देता हूँ. मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्स जितना भी जाता है, 6 या 8. उसके बाद मैंने 90 के 3 या 4 रेप्स करे एंड अनएक्सपेक्टेडली 105 के 2 या 3 रेप्स करे, जो मुझसे पहले एक भी नहीं होता था, अब 2 या 3 में हो जाता है बहुत आराम से. एंड 115 मैंने पहले तो 2 बारी फेल किया. ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था एंड थर्ड अटैम्प्ट में भी मैंने शायद फेल तो किया था. मतलब थोड़ा सा जैसे यहाँ पे लिफ्ट होगा अभी देखो. एंड उसके बाद आई जस्ट फेल्ट लाइक टुडे इज़ नॉट द डे बट लेट्स गिव इट वन मोर ट्राई. एंड फाइनल ट्राई में मैंने अच्छे से उसको क्लीन लिफ्ट किया एंड डाउन इट गोज़ टू ग्राउंड. तो हमारा डेड लिफ्ट अब ख़त्म हो गया. अब हम करने वाले हैं पुलअप्स. पुलअप्स हम करेंगे स्टार्टिंग में बॉडी वेट से, मैक्सिमम नंबर ऑफ रैप्स, एंड देन धीरे धीरे करके 20, 25 एंड 30 kg से फिनिश करेंगे अपना पुलअप का सेट. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. तो जिम रेनोवेट हो रहा है, तो इस टाइम पे जिम में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो एक पुलअप के मैंने सिर्फ 2 सेट रिकॉर्ड कर रहे हैं.
अब हम बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो है बैक ऑफ द नेक पुल डाउन। इसके भी मैं 4 सेट करने वाला हूँ, लेकिन देखते हैं कितने रिकॉर्ड करते हैं। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see. तो बैक ऑफ द नेक पुल डाउन भी ख़त्म हो गया। अब हम करने वाले हैं चिनअप्स। चिनअप के भी हम 4 सेट करेंगे, 12 से 15 रेपिटेशंस बॉडी वेट पे। इसमें कोई वेट ऐड नहीं करेंगे। Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got night. तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैंने चिनअप का सिर्फ एक ही सेट अपलोड किया है। अब हम जाने वाले हमारे लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, दिन के, जो है बारबेल रोज। इसके भी हम 4 सेट करेंगे। रो जो है हम स्टार्ट करेंगे 25 ऑन ईच साइड एंड एंड करेंगे 32.5 ऑन ईच साइड। I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to तो फाइनली हमारा वर्कआउट ख़त्म हो गया। अब हम घर जाएंगे और खाना खाएंगे। और यही था हमारा आज का वर्कआउट एंड थेरेपी सेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आएगा तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ लाइक दिस। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ फाइनल फॉर्म डायरीज। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते। I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be